वेलकम अगेन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल्ड फॉर 7th August 2020 एंड स्टूडेंट्स अगेन दिस वर्कशीट इज belong to chapter 2 acids, bases and salts. Okay, now in previous video we discussed about baking powder and also baking soda, and you know very well about the difference between baking powder and baking soda. And now in this video we will discuss next type of salt, that is plaster of Paris, that is the POP. What is the full form of POP? Plaster of Paris. And what is the chemical formula? CaSO4 half H2O, calcium sulfate hemihydrate. What is the meaning of hemi? Hemi means half molecule, and hydrate means having water. Okay, अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल कैसे पॉसिबल है. सो देखिए, जब जो कैल्शियम सल्फेट की जो पीओपी की अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस तरह होती है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ 2 कैल्शियम सल्फेट की जो फॉर्मूला यूनिट है वो जुड़ी हुई होती है. अब जब हम इसको सिंगल एक लिखेंगे तो हम इसलिए इसको क्या लिखते हैं, हम केवल इसको हाफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसके साथ हम लिखते हैं, इसलिए इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम. ये कैसे हम ऑब्टेन करेंगे? बाय हीटिंग जिप्सम. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4 2H2O. व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 Kelvin, स्टूडेंट्स टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल हियर. ओके, टेम्परेचर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर करते हैं तो क्या होगा कि जो जिप्सम है, देखिए CaSO4 2H2O, इसको हम 373 केल्विन पे हीट करेंगे, देन इट विल फॉर्म POP, CaSO4 हाफ H2O. अगर इससे ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड फॉर्मूला विल बी CaSO4, and this will be burnt plaster. Okay, this will be now burnt plaster. So the temperature must be controlled here. At this temperature the molecules of water are evaporated and gypsum turns into plaster of Paris. So at 373 Kelvin this gypsum it turn into plaster of Paris. Now let's discuss properties of plaster of Paris and some uses of plaster of Paris. Properties that plaster of Paris is a white powder. Okay, किस टाइप का पाउडर है? It's white powder. Mixing of water into the powder of plaster of Paris changes it into gypsum and it is exothermic reaction. अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस इसमें क्या करते हैं, हम पानी डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और ये दोबारा से क्या बन जाता है, इट विल फॉर्म जिप्सम. एंड दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द हीट इज इवोल्व्ड. ओके, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद एक्सोथर्मिक. एक्सो मीन्स exit and therm means heat, so there will be the evolution of heat, so this will be the reaction. Now there are some uses of plaster of Paris. That plaster of Paris is used in medical treatment. Okay, whenever we got any bone fracture, then doctor apply plaster of Paris, so it is used to cover as plaster in the case of fractured bones. It is used for making beautiful and designer fall ceiling and other room interior. जो इंटीरियर डिज़ाइन बनते हैं, फॉल सीलिंग होती है, that all are by POP. Next, it is used in making toys and other decorative material, and also it is used in casting into clay mold. यानी जो मिट्टी के सांचे जो बनते हैं, ठीक है, जो मॉल्ड्स बनाए जाते हैं वो सब POP के बनते हैं. Next, are the crystals of salts really dry? यानी जो सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स होते हैं क्या वो ड्राई होते हैं? सो स्टूडेंट्स, सभी जो सॉल्ट्स होते हैं वो ड्राई नहीं होते.
कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं और कुछ एनहाइड्रस होते हैं, ठीक है। हम टू वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको हर एक जो वर्ड है उनकी टर्म जो भी है उनको आपका पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर टू टर्म्स यूज की, एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। सो टू टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। हाइड्रेटेड मीन्स हैविंग वाटर मॉलिक्यूल, ओके, and anhydrous that is without water. Now the crystals of salt appear dry but many salts contain some water molecule. हमने एग्जाम्पल लिया था Na2CO3 that is washing soda having 10 water molecule, okay. This 10 water molecule, due to these 10 water molecule this salt is hydrated and this 10 molecule of water is known as water of crystallization, ठीक है। जो salt की ज्योमेट्री होती है, कलर होता है most probably that is only due to the water of crystallization. So how can you define the water of crystallization? The fixed number of water molecule. Fixed number means जो भी फॉर्मूला यूनिट है उसके साथ जो भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके जो नंबर होगा दैट विल बी द फिक्स्ड. द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट. Salts that contain water molecule are known as hydrated salt. ये मैं आपको अभी बताया मैंने, hydrated salt. For example, copper sulfate. You already familiar with the formula of copper sulfate, that is CuSO4 and 5H2O. This 5H2O is water of crystallization. Now crystals of copper sulfate appear blue because it contains 5 water molecules, okay, and these 5 water molecules, these are responsible for the color, blue color of copper sulfate salt. This is the cause that chemical formula of copper sulfate is CuSO4 5H2O. When crystals of copper sulfate is heated, it loses water molecule and its color and become white. So जब हम copper sulfate 5H2O को heat करते हैं, okay, there is no need of 1.5 molecule of water. That after heating it will form copper sulfate that is white in color, and these 5 water molecule they get evaporate, okay, they get evaporate, यानी वो जो है इवेपोरेशन उनका हो जाएगा. बट व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अब देखिए ये वाइट है, ठीक है, इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल वो उनका इवेपोरेशन हो गया. अब ये कैसा है, ये एनहाइड्रस है, ओके, विदाउट वाटर. अगर इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में हम दोबारा पानी डालते हैं तो ये वापस जो है क्या हो जाएगा, इसका वापस कलर इसका आ जाएगा. और अगर ये कुछ टाइम तक रखा रहे मॉइस्चर की प्रेजेंट में, एयर में, तो भी इसका ब्लू कलर जो है वो रिगेन हो जाता है. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट द कलर इज ड्यू टू द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और बच्चों अगर आप ये प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जो ऑनलाइन लैब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर विजिट कर आप इस प्रैक्टिकल को देख सकते हो कि किस प्रकार कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो डिसअपियर होता है और कैसे वो रिगेन होता है. Now there are some salt. Name of the salt, that is copper sulfate. Color is blue, and what will be the chemical formula? Chemical formula will be copper sulfate 5H2O, CuSO4 5H2O. Ferrous sulfate, color is green, and FeSO4 7H2O. Next, sodium carbonate, that is washing soda, white in color, Na2CO3 10H2O. Gypsum, white in color, CaSO4 2H2O. This is the formula. Now there are some questions. और अगर आपने वर्कशीट को अच्छे से समझ लिया है तो कोई मुश्किल नहीं है आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है लिखना. What is the full form of POP? Full form of POP is plaster of Paris. Write its 3 uses. आपको 4 uses given है, यहाँ से आप easily कोई भी 3 uses लिख सकते हो. Define the term water of crystallization with one example. So यहाँ से आप आंसर 2 लिख सकते हो, ठीक है. The fixed number of water molecule in one formula unit of a salt is known as water of crystallization,
एंड सॉल्ट दैट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। आपको एग्जांपल देना है कॉपर सल्फेट का और कुछ इसकी डिटेल जो हमने अभी की है, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से कैसे हमें मिलता है, तो देखिए ये जिप्सम का फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो आप यहाँ से थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखते हो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ओके, अगर आप जिप्सम को हीट करते हो, साथ में आप केमिकल रिएक्शन दीजिए, CaSO4 2H2O and 373 Kelvin, temperature must be controlled here, and then there will be the formation of CaSO4 half H2O. Okay, so this is POP and 1.5 molecule of water that get evaporate here, and this is gypsum. So this is the chemical reaction, and by this reaction we obtained POP from gypsum. और काफ़ी इजी रिएक्शन है। और बच्चों अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर कंप्लीट चैप्टर की वीडियोस आपको MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, कंप्लीट चैप्टर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की प्लेलिस्ट है और वहाँ पर विजिट कर आप बहुत डीपली चैप्टर को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपन्स व्हेन क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज हीटेड, राइट द कलर ऑफ द न्यू सब्सटेंस। ओके, सो यहाँ से आप आंसर 4 है, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड इट लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स कलर एंड बिकम व्हाइट। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन हियर। When you heat copper sulfate 5H2O, after heating it will form copper sulfate that is white in color and 5 molecule of water that get evaporate here. Write the color of the new substance. The color of the new substance is white and this is anhydrous copper sulfate. But when water is added to this anhydrous copper sulfate or it exposed to moisture present in air, it turns blue again. सो आप ये आंसर जो है यहाँ तक जो है आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट, देयर आर 4 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। सो आप इनमें से कोई भी 3 जो है वो लिख सकते हो। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है देन फील फ्री टू आस्क एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।